We'll start this new topic. We were discussing about RBI and how it regulates the bank, how it manages inflation and money supply over India. Now we should measure the money supply. By what instrument RBI measures the money? So money measurement होती है. After that money is made to be printed, and how inflation to be targeted is all made on this core concept of measurement of money. So money measurement is given by the formula m equals to 1 upon r. So पहले हम समझ लेते हैं कि what are the different types of money which are present with the bank. First of all, there is m naught, that is currency in circulation, adding to which the banks deposit with RBI. RBI के साथ बैंक क्या डिपॉजिट करता है? CRR and SLR plus other deposits with RBI, securities, bonds and such things. So anything which a bank deposit with RBI constitute m naught. Then is the m1, that is currency with public plus demand deposit with the banking system, that is current account and सेविंग अकाउंट. कासा का जो पार्ट विद पब्लिक के साथ सर्कुलेशन में रहेगा और जो बैंक के साथ डिपॉजिट होगा, दैट गोज विद द RBI. RBI that constitute M1. Then these two are called as narrow money. M2, that is M1 plus saving deposit of post office saving banks. So saving of post office plus M1 gives you M2. These two are together called as narrow money. अब broad money की बात करते हैं. So money comprises of M1 plus time deposit. तो कसाटा मैंने बताया था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट. तो कसाटा का जो पार्ट है, that is time deposit, adding to M1 gives you M3. Then comes M4, that is M3 plus all deposit with the post office saving bank. M3 plus पोस्ट ऑफिस के साथ जितनी भी डिपॉजिट है ना, that gives you M4. So these are called as the broad money. Now we should look at how RBI manages this money in different terms to create various aspects in the market. So demand and the liability, time deposit and the liability of the bank. As per बैंक हैज़ टू पे टू द कस्टमर, तो कस्टमर को उसे देना होता है. तो बैंक कैसे काम करते हैं? बैंक इज टेकिंग मनी, बोरोज मनी फ्रॉम सर्टेन कंपनीज और गवर्नमेंट, RBI, देन इट गिव्स लोन्स, सैलरीज, पेमेंट्स. देन there is broad money M3 divided by रिजर्व मनी M0. सो ये जो मनी सर्कुलेट हो रही थी, दिस बोथ आर नोन एज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक, एंड दिस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम आर द सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी. इससे ही लिक्विडिटी मेंटेन रहती है मार्केट में, जिससे आप डेली परचेज और सेल करते हो. तो डेली सर्कुलेशन ऑफ करेंसी called as the liquidity in the market. Now money multiplier provides you the exact ratio up to which certain transaction can be made. It is given by the formula 1 plus currency in circulation divided by the required reserve ratio plus excess reserve ratio plus the currency in circulation. और कई बुक्स में आपको सीधे 1 upon r लिख देते हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला. दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला टू गेट द मनी मल्टीप्लायर बाय द बैंक. सो एक्सेस रिजर्व समवेयर इज $0.80 billion and the
required reserve ratio is 0.10 and currency in circulation that is goes to 0.5 डॉलर। तो ऐसे करके ये कैलकुलेट होता है एंड दिस गिव्स यू एग्जैक्ट रेशियो ऑफ व्हाट मनी इज क्रिएटेड एंड व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल। नाउ थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करते हैं, थोड़े आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं। जनता के पास जो पैसा रहता है दैट पीपल अर्न थ्रू हार्ड वर्क, दे गेट वेजेस। ये आप देख रहे हो तो राजेश खन्ना की मूवी का एक सीन है इसमें कि देयर इज अ जनता अर्निंग हार्ड अर्न मनी एंड देयर इज इंद्रानुई हु इज बैंकर, एसबीआई बैंकर। सो उसको जनता जमा करती है पैसा को। अब ये मनी दैट इज इन सर्कुलेशन, फिएट मनी प्लस मनी विद द बैंक टुगेदर इज कॉल्ड एज द नैरो मनी और इट मेक्स M1। ये दोनों ऐड होते हैं तो M1 बनता है, जनता का मनी और जनता ने जो बैंक में जमा किया। दिस टुगेदर फॉर्म M1 प्लस व्हेन वी ऐड M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग जोड़ दिए तो क्या बन गया M2, जो राजेश खन्ना कहता है कि हमारा ही पैसा हम ही वापस नहीं करोगे, जो कि बैंक को जनता ने जमा कर दिया इंक्लूडिंग सेविंग एंड M1 इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस सेविंग। M1 का ही पार्ट होता है जो करेंसी करंट अकाउंट में आप ATM के द्वारा विड्रॉ कर लेते हो, दैट कंस्टिट्यूट द M1। नाउ व्हाट इज M2? M2 इज द M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स and what is M3? When this M1 is added with the time deposit, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए जो लोग रखते हैं बच्चों की शादी के लिए, है ना, स्कूल एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, फ्यूचर सेविंग्स जो होते हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। सो M1 प्लस FD गिव्स यू M3। M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटी gives you the broad money and this broad money is used by banks to provide loans to corporates। अब आपके पैसों का बैंक क्या करते हैं, कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस। तो शक्तिकांता दास जी आ गए। शक्तिकांता जी कह रहे हैं और हाँ, आग पानी और भाई से कभी खेलना मत, क्योंकि आग जलाती है, पानी डुबोती है और भाई परीक्षा के लिए ऐसे फॉर्मूले रटवा कर तड़पा देते हैं। दैट इज अगेन हार्ड कोर स्टैंड ऑफ RBI, जो कि बेसल नॉर्म्स को फॉलो करवाती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन रखने में, है ना। तो हम देखेंगे क्या है CAR। सो देयर कम्स द M4 दैट इज एडिंग टू M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट विच इज M3 plus M4। M3 plus post office saving gives you M4, है ना। M3 plus post office savings जो कि पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट्स किया है वो ऑल टुगेदर गिव्स यू द M4। एंड नाउ पोस्ट ऑफिस सेविंग भी आफ्टर ऑल पार्ट होगी रिजर्व बैंक का। ये सारे सेविंग कहाँ पे जा रही हैं, रिजर्व बैंक के पास जा रही हैं। वेदर इट इज kept with the bank in SLR, CRR, still it is used by the Reserve Bank to have policy formation. So before making monetary policy, Reserve Bank have to measure the money supply like this। से क्या करती है, मनी सप्लाई को मेजर करती है कि लिक्विडिटी M1 is higher than M2 or not, M1 एडिक्वेट है कि नहीं, M2 उससे ज़्यादा है कि नहीं, M3 का रेशियो M4 से अधिक है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा M1 होना चाहिए, देन M2, देन M3, देन M4। इन दिस वे यू गेट द सप्लाई ऑफ द मनी बाय लार्जर पार्ट। सो नाउ you understand how this money supply is helped with the
money multiplication to create different kinds of money for the Reserve Bank of India to make the monetary policy. बजट से पहले हर साल ये मनी मल्टीप्लायर्स के द्वारा मेजरमेंट कर लिया जाता है कि क्या मनी की वैल्यू है इंडिया में, उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब लिक्विडिटी को थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज़ लिक्विडिटी? बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विच आर लेंट इन द इकोनॉमी। द मनी विच कैन बी पोटेंशियली बी लेंट बाय द बैंक इज़ नोन एज लिक्विडिटी। जो आप एटीएम से निकाल लेते हो, पब्लिक किसी भी मीन्स के द्वारा बैंक से जो मनी ले लेती है, दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विडिटी मनी। बैंक्स leverage the deposit manifold for lending the economy, known as the credit creation by banks, and this credit creation is almost like fresh money injection in the economy। जैसे ही ये क्रेडिट क्रिएशन होता है, इसे समझा जाता है कि फ्रेश मनी मार्केट में आ गई। क्यों? क्योंकि आपने देखा यू गॉट 2000 न्यू नोट प्रिंटेड। अब ये नोट जैसे ये आपने बैंक से लेके मार्केट में आए, तो ये क्या हो गया? न्यू मनी का क्रिएशन हो गया। Thus, liquidity in the economy should strike a balance between requirement of the growth and the same time keeping the price under the check। अब ये प्राइस को भी मेंटेन रखती है और मनी सप्लाई को भी बढ़ाती है। और ये किसका काम है? बैंकिंग सेक्टर का। सो आरबीआई के फंक्शन में ये एक मेजर वर्क है in front of RBI to manage the demand deposits and the customer demands and time deposits which can be drawn after fixed period of time। तो इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई को बैंक्स के साथ काम करना पड़ता है। Now let us see money measurement। So Reserve Bank of India has four concept of money supply: M1, M2, M3, M4। जो हमने अभी समझ लिया कि M1 refers to currency with the public, करेंसी इन सर्कुलेशन। M2 refers to, M1 में क्या क्या आ गया? कॉइन्स आ गए, करेंसी नोट्स आ गए एंड डिमांड डिपॉजिट्स आ गए। देन M2, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, M3, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। देन आ गया M4, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, सॉरी। So there goes the formula for the money measurement। Now money multiplier को देखते हैं। अब आरबीआई क्या कर रही है? मनी को मेजर कर रही है। मेजर करने से पहले बैंक से वो पूछती है कि आपकी मनी कहाँ तक कंपाउंड हुई है और हाउ मच मनी इज मल्टीप्लाइड बाय अ बैंक, हाउ मच प्रॉफिट इज क्रिएटेड। देन बैंक्स क्या करते हैं? मनी मल्टीप्लायर से पोटेंशियल चेंज इन द मनी सप्लाई को ऑब्जर्व करते हैं इन द रिजर्व्स। सो मनी मल्टीप्लायर गिव्स द मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज इन द मनी सप्लाई ड्यू टू अ चेंज इन द रिजर्व्स। नाउ इट गिव्स potential money multiplier which is given by formula 1 upon required reserve ratio, which we see in previous slides, and it gives the initial change to excess reserve, how much change is needed, then it is multiplied by the actual money supply, से multiply हो रहा है, which gives the actual change in the money supply। मनी सप्लाई जो मौजूद है मार्केट में या हो रही है, उसमें एक्चुअल चेंज कितना हो रहा है? व्हाट इज एक्चुअल चेंज इन द मनी सप्लाई? तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। यू शुड नोट इट डाउन, यू शुड मेक इट अ रिमेंबर पॉइंट। तो हमने पहले भी ये फॉर्मूला देखा था, कहाँ पे? यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला देखा था, मनी मल्टीप्लायर 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई सी, है ना। नाउ दिस इज द शॉर्टर वर्जन। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। नाउ
लुकिंग अहेड विद द मनी मल्टीप्लायर कि ये होता क्या है और ये करता क्या है. So money multiplier is an economic concept of creating money in the economy. It tells us about the total money bank can generate with each dollar of reserve. $1 के रिजर्व में क्या रेशियो इन्हें मिल रहा है. Therefore it is based on the fractional reserve banking system, है ना. Fractional या it is a ratio of the reserve or it is a fraction of reserve. So it is also called as the credit multiplier. So इसको क्या बोलते हैं. It is called as the formula that is m equals to 1 upon r. And हमने और फॉर्मूला क्या देगा 1 plus c e plus c plus r, है ना. Another formula was 1 plus currency in circulation plus euro plus currency in circulation plus reserve ratio gives you exact money multiplier. Now interpreting to the higher reserve ratio, the lower will be the multiplier. जितना कि रेशियो हायर होगा उतना मल्टीप्लिकेशन कम होगा. तो इट इज़ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जितनी रिवर्स मनी बढ़ जाएगी रिजर्व मनी उतना ये मल्टीप्लायर कम होगा, उतना प्रॉफिट कम होगा बैंक्स को. सो इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. व्हाट इज़ द फैक्टर्स which are affecting this ratio. So it is being affected by individual deposits, it is affected by the tax also, it is affected by the foreign market, it is affected by the cash amount, affected by the reserve hold of bank. Importance क्या है इसका. It is measures the change in a money supply in economy due to change in reserve requirements. Reserve requirements जैसे ही बढ़ता है तो मनी सप्लाई को बैंक्स प्रिजर्व करने लगती हैं. एंड इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिवाइस मॉनेटरी पॉलिसी. अब हम देखते हैं कि बैंक मनी क्रिएट कैसे कर रहे हैं. सो हमने अभी तक समझ लिया कि मनी आ रही है कैसे. हाउ मनी इज केप्ट विद द बैंक. नाउ हाउ बैंक क्रिएट्स दिस मनी. मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट कि बैंक तो आपने खोल लिया, एक दुकान समझ लो, वहाँ पे फैसिलिटी दे दी, लॉकर दे दिया, कंप्यूटर से अकाउंट ट्रांजैक्शन ये सारे. अब आपको बता रहा है कि पैसा आप बनाएंगे कैसे. सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए इज ए पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इन बैंक 10,000 रुपीज़. ए कितना पैसा जमा कर रहा है 10,000 rupees and banks give money 10,000 as a loan to B. अब इसके 10,000 को किसी बी पार्टी को बैंक ने दे दिया, है ना. एंड विद दिस लोन द पर्सन गिव सैलरी. अब ये 10,000 से इसके मजदूर थे, ये ठेकेदार आ गए. सो ये समझ लो कि ए है आपके टाटा जी. टाटा जी ने 10,000 पैसा जमा किया बैंक में या 10 लाख, और उस बैंक ने एक ठेकेदार को ये पैसा लेंड कर दिया. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्टर विल गिव सैलरी टू द लेबरर्स हु आर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. उनको दिहाड़ी का 500 करके 20 लोगों को दे दिया. है ना. तो इस तरह से ये मनी यूटिलाइज हो गया. नाउ ये लोग अब क्या करेंगे, ये 500 का 200 रुपये खर्चा करेंगे घर पे, 200 रुपये ड्रिंक वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे, 100 रुपये बच जाएगा. नाउ दिस 100 रुपये विल अगेन गोज टू बैंक. ये बैंक में जमा हो गया. तो ये 20 लोगों ने 100 रुपया जमा किया, तो 2,000 बैंक के पास वापस आ गया कि नहीं, इन करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट द बैंक. अब इस 2,000 को और छोटे ठेकेदार को देगा बैंक.
जो अपने लेबरर्स को 100 रुपये पे करेगा, उन 100 रुपये से वो 80 रुपये का सामान खरीदेंगे, 20 रुपये जमा कर देंगे। अब ये 20-20 रुपये 10 आदमियों ने जमा किया तो 200 रुपये फिर से बैंक के पास बच गए। इस तरह से बैंक कीप ऑन डिपॉजिट लोन्स which is used in salary, then again this salary is deposited somewhere, again some loan is passed, again some salary is given. This cycle goes on and this cycle continues. So this is a banking cycle. इससे बैंक मनी क्रिएट करते रहता है। सो देयर इज बेसल नॉर्म्स। अब ये 200 रुपये बच गए तो आरबीआई बोलेगी अरे आपने इतने पैसे क्यों लोन में दे दिए, 200 रुपये ही आपके पास बच रहे हैं। तो देयर कम्स द बेसल नॉर्म्स कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कुछ होनी चाहिए, दैट शुड बी minimum capital so that the future transaction and future works can be governed. तो बेसल इज अ प्लेस इन द स्विट्जरलैंड जहाँ पे एक मीटिंग हो गई। क्या हो गई कि बैंक्स को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंतर्गत सब मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेज एवरेज रेशियो से ऊपर होगा, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला आ गया। सो इसको नोट कर लेंगे कि वी एज्यूम दैट रिजर्व बैंक टू मेड बैंक हैज गिवन होल अमाउंट, और एनपीए भी क्रिएट होने लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स। तो उससे बचने के मेजर्स हैं बहुत सारे। नाउ वी विल सी हाउ इट गोज। यहाँ पे दोस्तों आरबीआई के गवर्नर्स के नाम दिए हैं, वो किसी किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो जिसे ज़रूरत है दे विल मेक नोट ऑफ इट, कौन कौन से गवर्नर किस साल में रहे हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग रही है। यू कैन नोट इट डाउन। नाउ व्हाट इज CAR? सो CAR इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो which a bank need to maintain against the risk weightage capital. So CAR equals to total capital with the bank upon the risk weightage capital. टोटल कैपिटल बराबर टायर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल जो आपके मूवेबल कैपिटल है, फिएट करेंसी, प्रॉपर्टीज एंड ऑल। टायर 2 कैपिटल गोल्ड, ज्वेलरीज एंड अदर प्रॉपर्टी पार्ट। तो इसमें कोई भी कैपिटल अगर रिस्क में है जिसको आप मॉर्टगेज कर रहे हैं कहीं लोन के बदले, दैट इज अ कैपिटल एट रिस्क। इट इज द परसेंटेज, इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेज क्रेडिट एक्सपोजर। जो भी कैपिटल रिस्क में है उसका ये रेशियो है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, CRAR। CRAR इक्वल्स टू T1 प्लस टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एट रिस्क और रिस्क कैपिटल। टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क कैपिटल। ठीक है। सो द रेशियो इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में और एफिशिएंटली रन करने में काम करता है। सो टायर 1 कैपिटल क्या होता है? अ टर्म इज यूज्ड दैट इज absorbs losses without the bank being required to cease the trading. This is the core measurement of bank's financial strength and it is most reliable capital. So tier 1 जो हो गया
कोर कैपिटल है जो मोस्ट रिलायबल है एंड विच इज केप्ट विद द बैंक। देन टायर 2 कैपिटल, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है लॉसेस को विद सम डिग्री, सो इट इज प्रोवाइडेड विद द एक्यूमुलेशन आफ्टर टैक्स सरप्लस। टैक्स सरप्लस के बाद कैपिटल बचता है वो कहलाता है टायर 2 कैपिटल। देन कम्स द टायर 3 कैपिटल, which is described as the capital adequacy of bank considered as the tertiary capital, है ना। टर्शियरी कैपिटल को भी हम जोड़ लेते हैं। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन रिस्क कैपिटल एट रिस्क, और रिस्क कैपिटल गिव्स यू द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, अब इस रेशियो को बैलेंस करके ही बैंक्स किसी दूसरे लेंडर्स को लोन देंगे। लोन देने के लिए ये एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन होना जरूरी है। नीड्स टू हैव मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम कैसे ये काम करता है। सो CAR और कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ बैंक। कैपिटल ऑफ बैंक इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट, टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3, जो अभी हमने देखा। कैपिटल विदाउट एन रिस्क, कैपिटल विथ रिस्क एंड विथ हैविंग ह्यूज एसेट्स, कैपिटल एट टर्शियरी लेवल। तो ये 3 टाइप्स के कैपिटल compiles the capital of bank upon risk weightage assets. Risk assets is equal to total loans in particular categories. Loans multiplied by risk associated with that category gives risk weightage asset. क्या दे रहा है, risk weightage assets. So T1 T2 T3 upon RWA risk weightage asset gives you capital adequacy ratio CRAR, and according to BASEL it should be 9% of the total deposits in the bank. तो ये 9% के राउंड होना चाहिए। बेसेल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कितने लोग गए हो, यू सी कोल्ड कोल्ड आइस, बर्फीले पहाड़, तो उसके लिए बैंक्स को 9% का कैपिटल होना ही चाहिए उस लोन को देने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं इसको। 1988 इंडिया हैज़ a same minimum capital requirement for the banks. So मेन एरिया ऑफ फोकस क्या था, रिस्क वेटेज एसेट्स, क्रेडिट रिस्क, और 1988 के बाद 1990 आ गया, क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्यों, क्योंकि लोन्स दिए जा रहे थे, सहारा, किंगफिशर, ऐसे कई कंपनियां आ गई जिनको लोन्स पे लोन्स दिए जा रहे थे। Now RWA introduced the creating of classified system grouping a bank's asset into 5 risk categories. 5 रिस्क कैटेगरीज में इनके कैपिटल को बांटा गया। The 0% category, that is cash, the central bank government debt. 20% category, developmental bank debt, OECD bank, Organization of Economic Development Countries, तो उनके बैंक के डेट 50% ऑफ रेसिडेंशियल मोर्टेज एंड 100% ऑफ प्राइवेट सेक्टर डेट। सो सम एसेट गिव्स नो रेटिंग, कुछ एसेट्स को कोई रेटिंग नहीं दी गई। देन CAR with the 8% of RWA, risk to एवरेज, एवरेज के साथ 8% का हमने CAR डाला। That provide the tier 1 capital, equity capital and retain the earning capital equal to or more than 4%. Tier 2 capital subordinate debt, total capital tier 1 plus tier 2 divided by RWA equals to 8%. तो 1988 में टारगेट क्या था, 8% था। देन somehow we see the condition were deteriorating, है ना। what were the deterioration,
सब प्राइम सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई। सो 1990s में हमने एलपीजी लगा दिया। एलपीजी लगाने के बाद आईएमएफ के कंडीशंस इम्पोज हो गए एंड देयर वाज इम्पोजिशन ऑफ द बेसल टू नॉर्म्स which gives in 2004 EU under the CRD 2006 यूरोपियन यूनियन CRD 2006 को लॉन्च कर दिया। 2004 की अब बात कर रहे हैं। सो थ्री पिलर्स कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। थ्री पिलर्स वेयर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क एंड सुपरवाइजरी रिव्यू। एक सुपरवाइजर होगा आपके ऊपर, आरबीआई तो होगी ही, और एक फॉरेन बैंक, दिस इज बेसल्स, एंड मार्केट डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड बेस्ड ऑन द मार्केट डिस्क्लोजर। ये थ्री क्राइटेरिया आप याद रखोगे, यू शुड मेक नोट ऑफ इट। ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पिलर्स द मनी सप्लाई एंड रिस्क was calculated. So calculation of credit risk was being done, the standardized approach, then internal rating based approach IRB was also provided, and securitization framework was also given. So operation risk, trading bank issue were also provided. So three calculation measures were imposed over the Indian banks. So total capital ratio must not be lower than 8%. उस टाइम तक भी 8% का कैपिटल रेशियो था। टायर 2 कैपिटल इज लिमिटेड टू 100% ऑफ टायर 1 कैपिटल, मतलब कि T2 जो है T1 का ही एक पार्ट है जो 100% कंपोज कर रहा है। द एसेट्स विच आर हैविंग lower risk. Then comes 2011 BASEL 2.5 which adds marked risk capital requirement. It is stressed value at risk, a new trading book framework with a incremental risk capital charged. Incremental risk capital charge कर दिए गए। कोई भी रिस्क अगर बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए and have a measure of trading activities in the overall banking system which comprises comprehensive risk मेजरमेंट CRM को लाया गया। स्टिल कितना रेशियो है, 8% का ही रेशियो मेंटेन किया जा रहा है। देन 2013 एंड 19 इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हो गए 2011 प्रपोजल के। अब कैलकुलेशन वाज रैशनलाइज्ड, सो एसेट्स वेर टेकन अंडर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ये चार क्राइटेरिया हो गए, चार क्राइटेरिया ऑफ रिस्क डिवाइड कर दिए गए। +2 न्यू लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, न्यू स्टेबल फंडिंग रेशियो, LCR प्लस स्टेबल फंडिंग रेशियो ऐड कर दिए गए। CET 2% to 4% के बीच होना चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5 to 7% के बीच होना चाहिए। बफर स्टॉक्स अप टू 7% तक मेंटेन होना चाहिए। काउंटर साइक्लिकल बफर अप टू 0.25% एंड लिवरेज रेशियो ऑफ 3% ऑफ ओन फंड्स, बट द रिस्क टू वेटेड रेशियो वाज इंक्रीज टू 9%। जो पहले 8% था रेशियो, नाउ इट वाज रेज टू 9% ऑफ द टोटल रेशियो। नाउ यू गेटिंग इट। सो ऐसे करके बैंक्स को एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में ले आया गया, सो दैट दे शुड नॉट गो बियॉन्ड देयर फंक्शंस एंड दे शुड नॉट लूज द एक्चुअल एडिक्वेट कैपिटल टू बी मेंटेन्ड एट अ मिनिमम ऑप्टिमम लेवल। से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। Estimate the functioning RBI in detail. There can be question, what is money multiplier, how it can be calculated,
explain the money measurement process. And critically analyze the BASEL norms for maintaining capital adequacy ratio. Now you have to solve this question and put it on t.me/gsrevolt on my Telegram channel. Now, what is ways, means and advances? Ways, means and advances are the other tools provided by RBI to the state government or central government to meet their cash requirement. कैश की रिक्वायरमेंट होती है सेंटर को या स्टेट को ड्यूरिंग सम प्लानिंग प्रोसीजर्स कंटिजेंसी सिचुएशन, उसको आरबीआई कैश देती है टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. So the loan should be paid up to 90 days. अगर 90 डेज तक पेड नहीं हुआ ये लोन तो क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? एनी एसेट that goes beyond 90 days of tenure is called as the non-performing asset. 90 दिन के अंतर्गत कोई भी लोन नहीं आप चुका पा रहे हैं, that becomes the non-performing asset. Now what is scheduled commercial banks? The banks which are mainly sent सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. ये शायद हमने पहले पढ़ा हुआ है. 1934 आरबीआई एक्ट के द्वारा सेकेंड शेड्यूल में जो डाले गए हैं इसे हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. So this bank comprises of scheduled commercial bank and scheduled cooperative bank, and this is comprised of State Bank of India and its associates. It is comprising of nationalized banks. So there are 5 broad categories: private sector banks, foreign banks, and regional rural banks. These are 5 categories. What is public sector bank? So 1969 commercialized banks were classified under nationalized banks. Nationalization किया गया by Indira Gandhi government. So these banks were called as public sector bank. Same thing is here, and these were registered under the Banking Regulation Act of 1949, and these were restrictions on the advanced banking companies. So 15 April 1986, bank having demand and time liability of not less than 200 crores. ये मैं पढ़ा चुका हूँ. So 6 और बैंक को कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1980 के थ्रू नेशनलाइज कर दिया गया. Then comes the State Bank of India, which was earlier Imperial Bank of India in 1921, and that 3 presidency banks of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras were added. It was nationalized in 1955. Then comes the private sector bank, new licensed banks, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. थोड़ा सा हम रीजनल रूरल बैंक को देखेंगे. व्हाट आर दीज? फॉरेन सेक्टर बैंक्स, बैंक रजिस्टर्ड एज ए हेडक्वार्टर इन ए फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कहीं भी ये रजिस्टर्ड होंगे. सो दिस आर एचएसबीसी, सिटीज बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, रॉयल बैंक ऑफ लंदन. These are called as foreign banks.
Regional rural banks established under RRB Act of 1976. याद रखेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स आरबीआई के द्वारा अलग से बनाया बैंक नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये कैसा बैंक है। सो लेट मी क्लियर इट दैट एनी ऑफ द बैंक विच इज established under RRB Act of 1976 to ensure institutional credit for agriculture and other rural sector is called as RRB, Regional Rural Bank, and is limited to the area as notified by GOI covering and one or more district of the state, so jointly owned by central government, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। सो मान लीजिए कि आप एक बैंक बनाने जा रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एक्ट के थ्रू आप इसे रीजनल रूरल बैंक बना रहे हैं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द स्टेक होल्डर एट 50% ऑफ शेयर, यूनियन गवर्नमेंट लेगी प्लस 15%, स्टेट गवर्नमेंट लेगी प्लस 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस अगर मिल जाएंगे तो आरआरबी एक्ट के थ्रू एक रीजनल रूरल बैंक फॉर्म होगा विच विल प्रोवाइड क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर फार्मर्स, एग्रीप्रेन्योर्स and poultry workers, fishermen and the farming industry. So RRB की objective क्या है? Is to develop the rural economy by providing for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activity in rural areas. Only याद रखिए cities के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इट विल बी स्पेसिफिकली फॉर रूरल एरियाज, क्रेडिट एंड फैसिलिटीज particularly in the small marginal farmers and agricultural laborers. Banking Regulation Act empowers NABARD as National Bank for Agriculture and Rural Development to undertake inspection of regional rural bank. तो नाबार्ड के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड।